Good morning. Hello, students. We are going to discuss the concept of relative motion today. So, whenever the word relative comes to my mind, it means with respect to. What does the relative word mean, beta? With respect to. Acha, in this chapter, in this part of the chapter, we are going to study some terms which are written over here. सबसे पहला term is relative position. Okay, the position of one body with respect to another body. Relative displacement, displacement of one body with respect to another body. Relative velocity, velocity of first body with respect to second body. Acceleration of first body with respect to second body, or vice versa. So these all terms which we are written over here, we are going to study over here. Example, if I tell you a river is flowing at 2 meter per second, आपने इससे क्या समझा? अगर आप सोचो तो अगर आपको क्या समझ में आया इससे? You will tell me, sir, velocity of the river is 2 meter per second. ठीक है? But with respect to what? Remember one thing, that in this whole universe, everything is relative. Everything in this world is relative, means with respect to. You have to compare with a certain quantity. Okay? If you ask me, sir, you are tall or short, I will tell you with respect to what. So you will ask me, sir, with respect to a child. So with respect to a child, I am tall. Okay. Tall is not an absolute quantity. It is a relative quantity. वैसे ही you tell me, sir, okay, this shirt, okay, is nice or bad, is good or bad. I'll ask you with respect to what? So you need to compare, right? Okay, you compare, okay, persons also, you compare actors also with one another. कि भाई इसने अच्छा acting किया था, with respect to that person, he's not done good acting. So whole mind works on relative thing. It is not an absolute quantity. आपका जब result आएगा, तो result will also be relative. Okay, out of 100. Yes or no? It is not an absolute. I got 99. Out of how much? नहीं, out of कुछ नहीं. It is absolute. नहीं, ऐसे नहीं होता है. So ये भी जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, position, displacement, velocity, acceleration, they all are with respect to something. Are you understanding what's happening? अच्छा, इधर बात करता है. If I tell you a river is flowing at 2 meter per second, river is flowing at 2 meter per second with respect to what? You tell me, sir, river is flowing at 2 meter per second with respect to, yeah, earth, या with respect to ground, जो भी आप कह सकते हो. So इसको ऐसे लिखेंगे, velocity of the river with respect to ground. Velocity of the river with respect to ground. या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं velocity of river. ये तो हमने पढ़ा ही है. This we have studied how to write. But यहाँ पर actual method of writing is this, velocity of river with respect to ground. मतलब ये term अगर हम देखें तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कहना चाह रहे हो this is the velocity of the river when ground is assumed to be at rest. Velocity of the river when earth is assumed to be at rest. Is the earth at rest? No, sir. It is rotating, it is revolving. मगर हमने दिमाग में मान लिया कि the ground is at rest or the earth is at rest. So this actually means, okay, this is velocity of what, sir? Of the river when ground
is assumed to be at rest. Yes or no sir? या तो आप उसको सीधा वेलोसिटी ऑफ द रिवर लिखो, मगर ये भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आपको समझ में आ रहा है लगता है? अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग. सपोज इफ आई टेल यू दिस इज द अर्थ, यहां पर देयर इज अ कार व्हिच इज गोइंग. A car is going beta with velocity of the car is 2 meter per second. Yes or no sir? Is this the absolute velocity of the car? No sir. आप लिखेंगे, can I say this is the velocity of the car with respect to ground? 2 meter per second. I can say this is the velocity of car with respect to ground when ground is assumed to be at rest. भाई वरना तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, यस और नो सर? यस और नो. अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर इज अ ट्री and there is a person who is walking forward, ठीक है, with 1 meter per second. This is the velocity of the man is 1 meter per second. मैं आपसे कहूं what is the velocity of the man, तो आप कहेंगे सर it is 1 meter per second. With respect to what? आपने कहा with respect to ground. Ground is at rest. Suppose यहां पर एक bird बैठा हुआ है and bird is also looking at the man, and if I ask you what is the velocity of the man with respect to bird, you will tell me it will be 1 meter per second because the bird is assumed to be at rest and the bird is also at rest on the earth. So velocity of the man with respect to earth and velocity of the man with respect to bird will be same, क्योंकि दोनों ही नहीं चल रहे हैं ना. ग्राउंड इज ऑल्सो एट रेस्ट एंड बर्ड इज ऑल्सो एट रेस्ट बेटा. सो बर्ड अगर ये इंसान को देखेगा तो बर्ड के हिसाब से ही विल गो विद 1 आगे. यस और नो? अच्छा, इफ अनदर पर्सन ओवर हियर हु इज ऑल्सो एट रेस्ट इज लुकिंग एट दिस पर्सन, he will also feel that this guy is moving with 1 meter per second आगे. Okay. So velocity of the man with respect to bird, they are actually also at rest and assumption भी rest पर ही है, and ground over here is assumed to be at rest. Yes or no sir? अब हम इसको थोड़ा और टेक्निकल फॉर्म में पढ़ते हैं so that it becomes more clear to us. Okay? ये डायग्राम, इसको देखकर डरना नहीं है. It's very simple. Suppose this is the reference frame of the ground, of the earth. Okay, this is x and this is y and this is the ground. This origin is considered to be ground. Ground पे किधर? Ground पे suppose आपका घर ले लो. You can take your house. You can assume it your house is at the origin. There's another frame of the river where this is the origin of the river. Okay, कोई भी river का एक point पकड़ लिया हमने origin. Okay, it is not the origin of the river where the river is gushing. मतलब कोई भी एक पॉइंट आपने रिवर का ओरिजिन मान लिया. ओके, तो दिस इज योर हाउस, दिस इज द रिवर का एनी वन पॉइंट. कैन आई से this vector is the position vector of the river with respect to ground? अरे yes or no sir? Position vector of river with respect to ground. मगर with respect to ground लिखने की जरूरत नहीं है, तो I will write this as r bar. Can I write r bar? मतलब this is the what sir? Position vector of river with respect to ground. Yes or no sir? मतलब who is assumed to be at rest over here? The ground. And ground को हमने दिमाग में रेस्ट पर पकड़ लिया.
ऐसे तो नहीं है रेस्ट पर, आप रोक नहीं सकते हो, मगर दिमाग में तो कुछ भी कर सकते हो। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ग्राउंड व्हिच कुड आल्सो बी रिटन एज आर बार, यस और नो सर। सपोज यहां पर रिवर में एक बोट है, so this position vector will be position vector of the boat with respect to ground. देखो what is RB bar, बताइए आप, it is position vector of boat, yes or no sir? हाँ बेटा, आरबी बार क्या था? आरबी बार वॉज पोजिशन वेक्टर ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सर? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस और नो सर? मगर जनरल केस में हम लोग आरबी बार ही लिख सकते हैं। आरबी बार मींस इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस और नो सर? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसको इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर जॉइनिंग फ्रॉम रिवर टू बोट, देखो ये, कैन आई राइट दिस एज आर बी आर? अच्छा चलो बताओ, व्हाट इज दिस? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू whom? विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, मतलब यहां पर आपने दिमाग इस क्वांटिटी में आपने दिमाग में सोच लिया था द ग्राउंड इज एट रेस्ट। इस क्वांटिटी आपने सोच लिया दिमाग में कि द ग्राउंड इज एट रेस्ट। इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपने दिमाग में सोच लिया दैट द रिवर इज एट रेस्ट। ओके, अच्छा आप मुझे और बताइए, यू कैन टेल मी दैट व्हाट प्लस व्हाट इन ट्राइंगल लॉ इज व्हाट? आप लोग सब बता सकते हैं। ओके, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर? देखो यहां पर 2 शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, दीस टू आर इन द सेम डायरेक्शन। सो कैन आई से आर आर बार प्लस आर बी आर बार विल बिकम इक्वल टू आर बी बार? एवरीवन अग्री? स्केलर वेक्टर्स पढ़ा है कि नहीं भाई, यस और नो? सो पोजीशन वेक्टर ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड plus position vector of the boat with respect to river will become equal to position vector of the boat with respect to ground. Yeah. So can I say what will be position vector of boat with respect to river? Will become r b bar minus r r bar. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पोजीशन वेक्टर देखो, फिर से देखो, position vector of the boat with respect to river will be position vector of the boat with respect to ground minus position vector of the river with respect to ground। बट यहाँ पर ground लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिमाग में आपको पता ही है ground is at rest, अज्यूम कर लिया आपने, yes or no sir? ये अच्छा सर, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपको मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वेलोसिटी। तो अगर इसका रेट ऑफ चेंज ले लिया, मतलब ये पोजीशन भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, ये बोट की पोजीशन भी चेंज हो रही है, यस और नो? सो यहां पर इफ आई टेक रेट ऑफ चेंज इन द 3 क्वांटिटीज, ये क्या बन जाएगा? दिस r विल टर्न इनटू v वेलोसिटी, सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर will become velocity of the boat minus velocity of the river with respect to ground। बोलो भाई, अगर ये चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी बोलते हैं ना, पढ़ा तो है काइनेमेटिक्स में, यस और नो सर? अच्छा अगर ये भी चीज चेंज हो रही है तो आपको पता है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इट इज एक्सेलरेशन। सो कैन आई राइट दिस एज बेटा कम ऑन टेल मी व्हाट विल इट बिकम? इट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बिकम एक्सेलरेशन ऑफ द बोट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द रिवर।
तो आप यहां पर अगर इसको गौर से देखेंगे, यू लुक इट ओके एट इट केयरफुली, सो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी बोट माइनस रिवर, क्योंकि यहां पर b, यहां पर r, यहां पर b, यहां पर r, क्वांटिटी तो वही है ना, r r r, v v v, a a a, but b with respect to r will become b minus r. So can anyone tell me what is the position vector of 1 with respect to 2 will become what, sir? Position vector 1 minus position vector 2 with respect to ground. Yes or no? Are you understanding what's happening? तो ये चीज हमको डेरिवेशन में लेकर आना है। अच्छा, इसको कैसे बोलेंगे? v12, आप पढ़ के बताइए, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब हु इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट ओवर हियर। आपने दिमाग में क्या रेस्ट पर, दोनों चलते हो गए, बट यहां पर रेस्ट पर किसको पकड़ना है? 2 को। तो इट विल बी v1 बार माइनस v2 बार। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 will become v1 बार माइनस v2 बार। अब हम लोग इसको और न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे ताकि आप अप्लाई कर सको और समझ सको। दिस इज जस्ट एनालिटिकल डेफिनेशंस। जब उसको न्यूमेरिकल्स में पुट करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1? मतलब हु इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट? सर 1 इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट। ओके, इसको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इट विल बी a2 बार माइनस a1 बार। Are you all understanding what's happening, everyone? चलो इसको एक काम करते हैं, we'll study this in form of some numericals so that you can, okay, very nicely understand this whole thing. देखते हैं लोग। Okay. Suppose if I tell you, एक एग्जांपल लेते हैं, ये ट्री है, वही एक पर्सन इज वॉकिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर देयर इज अ बर्ड, द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। बोलो यस और नो? ओके, अच्छा, इफ आई आस्क यू, सुनना मेरी बात अभी, एवरीवन जस्ट पे अटेंशन। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ओके, ये तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि ओके v12 बार वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बी v1 बार माइनस v2 बार। अभी डराइव किया हमने, यस और नो सर? तो 1 और 2 विल बिकम 1 माइनस 2। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री will become vmt bar will become vm bar minus vt bar. Yes or no sir? The velocity of the man with respect to tree will become vm. Vm is what? 2 meter per second in this direction. This direction को ले लेते हैं i cap and ये direction को क्या लेंगे बेटा? minus i cap. Are you all understanding what's happening? So this will be written as plus 2 i cap minus velocity of the tree, but actually the tree is what at rest ना? Yes or no sir? तो ये तो हो जाएगा 0 i cap 0 j cap, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। Yes or no? So 0 i cap लिख लेते हैं। चलो, so velocity of the man with respect to tree will be 2 i cap। मतलब क्या? मतलब ट्री को क्या लगेगा, या ट्री पर बैठे हुए बर्ड को क्या लगेगा? That the man is going in the plus I direction, plus x direction, okay, with a velocity of what? 2 meter per second. Are you all understanding? Yes or no? अच्छा, और थोड़ा पढ़ते हैं। Everyone just pay attention. If I ask you what is the velocity of tree with respect to man, कैसे लिखना है इसको? इसको लिखना है वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, व्हाट विल बी द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली? vt बार माइनस vm बार। बार मतलब साइन के साथ में पुट करना है, प्लस i माइनस i, प्लस माइनस इज इंपॉर्टेंट। सो वेलोसिटी ऑफ द ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ पर
ओके किसको अज्यूम करना है कि रेस्ट पर है? देखते हैं हम लोग. दिस विल बी 0 आई कैप. ट्री तो रेस्ट पर है ना, ट्री तो चल ही नहीं रहा है. माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन इज 2 आई कैप. सो माइनस 2 आई कैप इज द आंसर. मीन्स व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन इज माइनस 2 आई कैप. इसका मतलब मैन को लगेगा कि द ट्री इज गोइंग पीछे with how much 2 meter per second, because obviously he is going आगे with 2 meter per second. तो इसको क्या लगेगा? पीछे जो चीज रुकी हुई है, it is going पीछे, okay, with a speed of what? 2 meter per second. Yes or no? Means this whole scenario can also be written like this. He is assumed to be at rest. Actually is this, बेटा ये तो हमने दिमाग में पढ़ा है. और इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है कि द ट्री इज गोइंग दिस वे विथ हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? इसको ये ऐसे लग रहा है बिकॉज एक्चुअली ये आगे चल रहा है. ओके सो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग. ओके जैसे हम ट्रेन में चलते हैं ना, तो हम जब ट्रीज, स्टेशनरी, प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो हमको क्या लगता है? वो सब चीजें पीछे जा रही है. तो इट इज रिलेटिव टू अस इन द ट्रेन दैट वी फील दैट ऑल द स्टेशनरी शॉप्स, all the platform, all the trees are going behind with the same speed which we are going in the train. और यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का. अच्छा इसको और एक अलग तरीके से पढ़ते हैं. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन प्लीज. ओके इसको एक और अलग तरीके से पढ़ते हैं. सपोज इफ आई टेक वन मोर न्यूमेरिकल टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर. सपोज there are 2 cars. A, can I say velocity of A is 2 meter per second, and there's another car B which is going with beta 5 meter per second. Okay? इसके पहले वाला जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें एक बॉडी रेस्ट पर थी. कौन रेस्ट पर था? ट्री वॉज एट रेस्ट, द मैन वॉज मूविंग. यहां पर दोनों मूविंग है. अच्छा सपोज एक इंसान, वन पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर एंड लुकिंग एट बोथ ऑफ देम. दिस इज द मैन. ओके बिकॉज ही इज ऑन द ग्राउंड एंड ही इज एट रेस्ट. बराबर क्या? तो ये दोनों गाड़ियों को देख रहा है with respect to man. Okay, so can I say what is velocity of A with respect to man, or velocity of A with respect to ground will be 2 meter per second. ऐसे ये डायरेक्शन को हमने प्लस पकड़ लिया, ये डायरेक्शन को हम माइनस पकड़ सकते हैं. यस और नो? आई कैप दैट इज अंडरस्टूड. एवरीवन इज गोइंग इन आई कैप, तो सब आई लिखने की जरूरत नहीं है. वील टेक दिस एज प्लस एंड वील टेक दिस डायरेक्शन एज माइनस. आई ऑल विथ मी. ओके बेटा समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है तो ये चीज है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो ग्राउंड से अगर देखा या मैन ने देखा ग्राउंड पर जो है तो इट विल बिकम 5 मीटर पर सेकंड, दैट विल बिकम प्लस 5 मीटर पर सेकंड. यस और नो? तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. यस और नो? अच्छा थोड़ा है ना उल्टा करते हैं. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ए, इसके हिसाब से ये गाड़ी आगे जा रही है. अच्छा अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से ये मैन कहां जा रहा है? तो आप कहेंगे ये अगर 2 आगे जा रहा है तो ये 2 पीछे जाएगा. राइट और नॉट? अरे यस और नो? अभी तो किया था. ओके द मैन एंड ट्री एग्जांपल ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये आगे जा रहा है, तो इस ड्राइवर के मुताबिक ये मैन पीछे जा रहा है. सो इट विल बिकम व्हाट? नो नीड टू राइट. अच्छा फॉर्मूला क्या रहेगा? vm माइनस va. बट vm का वेलोसिटी तो 0 है. व्हाट इज va? va इज प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. इज इट करेक्ट और नॉट? यस और नो? अच्छा इफ यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू b, you will tell me sir it is vm minus vb,
and Vm is to 0 because he is standing, and velocity of B कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो become -5 मीटर पर सेकेंड. Yes or no? तो इस ड्राइवर के अकॉर्डिंग ये 2 से पीछे जा रहा है, इस ड्राइवर के अकॉर्डिंग ये 5 से पीछे जा रहा है. Yes or no? Okay? हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे मुश्किल सवाल और करते जाएंगे, so that your concepts become very much clear. Then I'll be taking Zoom lecture specially designed for relative motion. Okay? आगे बढ़ते हैं ना. If I ask you what is velocity of A with respect to B? Velocity of A with respect to B. इसके बहुत सारे methods है solve करने के. I'll give you two very nice methods. एक तो normal method है जो हमारा है. Velocity of A with respect to B का formula क्या रहेगा? VA minus VB. And these are all vector forms, means you have to take the sign into consideration. So what does this mean, beta? This means velocity of A with respect to B. अच्छा, यहां पर अगर आप इस स्टेटमेंट को सोचो तो कौन किसको देख रहा है? Who is looking at who? Velocity of A with respect to B means B is looking at A. बोलो yes or no sir? Velocity of A with respect to B. With respect to मतलब ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर इज B. And who is the performer? A. इसको ऐसे तरीके से सोच सकते हैं ना हम लोग. अच्छा चलो इधर कर लेते हैं टेक्निकली इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज VA? VA is 2 and what is VB? 5. So what is this answer coming? -3 meter per second. Velocity of A with respect to B. Okay, मतलब B is looking at A and B is assumed to be what? At rest. तो इस चीज का डायग्राम क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? ये हमारा ग्राउंड है. B को आपने दिमाग में सोच लिया कि वो रेस्ट पर है. वो रेस्ट पर नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, आप दिमाग में सोच सकते हो. तो दिमाग में इतना पावर है ताकि आप लोग कुछ भी कर सकते हो. राइट और नॉट? सो B को हमने अज्यूम किया था इट इज एट रेस्ट. इसके अकॉर्डिंग A कहां जा रहा है? तो आंसर क्या आया? -3. -3 मतलब क्या? He is going this way with a speed of 3 meter per second. ये ड्राइवर B वाला ड्राइवर जब A वाले ड्राइवर को देखेगा तो इसको नहीं लगेगा कि ये 2 से आगे आ रहा है, इसको लगेगा कि ये 3 से पीछे जा रहा है. Are you all understanding what's happening? Because ये खुद 5 से आगे बढ़ रहा है ना. So distance keeps on increasing. So if I assume to be at rest, if I assume B to be at rest, B को क्या लगेगा कि A पीछे जा रहा है with 3 meter per second. Are you all understanding what's happening? इसका एक और एक, ये तो नॉर्मल मेथड है. दिस इज मेथड नंबर 1. दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल मेथड. मैं जब नीट या JEE जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू करूंगा, जो एंट्रेंस है, ओके, तब मैं आपको n नंबर ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स आई गिव इट टू यू सो दैट यू ऑल कैन क्लियरली ओके सॉल्व इट. बट ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट तो हमेशा कन्वेंशनल मेथड से ही होगा. Because if you don't understand conventional method, वो short trick what trick कुछ काम का नहीं है. Okay, because all short tricks are derived from conventional only. ऐसे कोई trick नहीं होता है. Everything is derived from basic conventional method. Okay, so ये एक conventional method है. इसको second method से हम लोग पढ़ते हैं. What is the second method telling you? अच्छा बहुत सारे method है. यहाँ पर मैं आपको 2 ही method दूंगा. I don't want to burden you in the HSC lectures. Okay, because फिर से वो चीज पढ़ाना ही है. क्या ढूंढना है हमको? वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. अच्छा, who is assumed to be at rest? Who is assumed to be at rest? You will tell me, sir, velocity of A with respect to B. मतलब B is assumed to be at rest and B is looking at A. यहाँ पर लिख लेते हैं ना हम लोग, velocity of A with respect to B. मतलब okay, this is velocity of A with respect to B. इसका मतलब क्या होता है? B is assumed
to be at rest and is looking at A। ये अपनी लैंग्वेज में हमने ऐसे लिख लिया ताकि हम समझ पाए, ये तो सब टेक्निकल है, ये हमारी लैंग्वेज है। तो B को हमको दिमाग में रेस्ट पर लाना है, मगर सर B तो चल रहा है, B तो चल रहा है। अच्छा B को कैसे रोकेंगे? ये A है जो 2 से आगे जा रहा है, और ये B है जो कितने से आगे जा रहा है बेटा? 5 से। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग B इज लुकिंग एट A, बट जो देखने वाला होता है दैट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी एट रेस्ट। आप कोई भी चीज को देखते हो ना रास्ते पे, यू स्टैंड एंड सी ना, यू डोंट वॉक एंड सी ना। कम ऑन यार, ओके। आपको कोई भी शोरूम में जाना है, कोई भी कपड़ा देखना है, कोई भी एंटीक देखना है, तो हाउ डू यू डू इट? यू स्टैंड एंड डू इट, राइट? ओके, यू डोंट वॉक एंड जस्ट सी। आपको अगर क्लियरली ऑब्जर्व करना है तो यू नीड टू स्टैंड। तो वही कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई किया गया है कि द थिंग हु इज लुकिंग, द बॉडी हु इज लुकिंग इज अज्यूम टू बी एट रेस्ट। तो इसको हमको दिमाग में रेस्ट पर रख देना है। अच्छा, रेस्ट पर कब रखेंगे इसको? रेस्ट पर तब आएगा जब ये फाई से कैन आई सप्लाई अनदर फाई इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये हमारे दिमाग में रुक जाएगा। Yes or no? तो ये 5 है, so can I supply another 5 in this direction vector? Yes or no? तो ये क्या हो गया? ये तो 0 हो गया। ये मैंने सप्लाई किया, ये एक्चुअल था, ये दिमाग में कर रहे हैं, रियली नहीं कर रहे हैं। रियली गाड़ी को हम पकड़ के पीछे से ऐसे नहीं रोक सकते, बट दिमाग में इसको रोकना है, तो इसको 5 दिया तो इसको ऐसे 5 दे दिएगा, तो ये 0 हो जाएगा। Yes or no? This will become 0 meter per second. That means it will be assumed to be what? At rest. जो ऑपरेशन आपने इधर किया वही ऑपरेशन आपको इधर करना पड़ेगा। What operation you have done over here? You have supplied 5 meter per second in the minus I direction. तो यहाँ पर भी आपको क्या सप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 5 in this direction. Yes or no? 5 in this direction. अच्छा, इधर का ऑपरेशन अगर आप देखो 5 meter per second इधर, 2 meter per second इधर, तो रिजल्टेंट कितना रहेगा बेटा? 3 meter per second in the minus I direction. तो इस ऑब्जर्वर को, बी को, जो रेस्ट पर है, अज्यूम टू बी एट रेस्ट पर है, उसको क्या लगेगा कि ए इज नॉट कमिंग आगे विद 2 मीटर पर सेकेंड बट गोइंग पीछे विद 3 मीटर पर सेकेंड। ट्रिक क्या है? इसका वेलोसिटी उल्टा करो और इसको दे दो, इसका वेलोसिटी उल्टा करो और इसको दे दो, एंड द रिजल्टेंट विल बी द आंसर। दिस इज द ट्रिक जनरली व्हाट वी फॉलो। इसका वेलोसिटी उल्टा करो और इसको दे दो। Yes or no? So conventional method is the formula. This method is what? इसका वेलोसिटी उल्टा करो और इसको दे दो, because इसका वेलोसिटी उल्टा करेंगे तो ये तो रुक ही जाएगा। वही ऑपरेशन इधर करना है, so it will become 2 and 5 and this will become 2, it will become 3. Yes or no sir? So this is okay. और एक एग्जांपल लेते हैं। If I ask you, बेटा what is velocity of B with respect to A? क्या लिखा है? velocity of B with respect to A. Who is assumed to be at rest? कौन देखने वाला है? Who is the observer? He is the observer. तो इसको हमको दिमाग में रोक देना है। क्या बना देना है बेटा? इसको रेस्ट पर बना देना है। According to method number 1, that is a conventional method, velocity of B with respect to A will become VB bar minus VA bar. Yes or no? So velocity of B with respect to A, मतलब A को क्या लग रहा है? B कहाँ जा रहा है? Who is the observer? A ना? So velocity of B with respect to A मतलब A is looking at B. तो जो देखने वाला है उसको आपको रोकना पड़ेगा, इसलिए देखो माइनस VA किया। जो देखने वाला है, जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, उसको आपको रोकना पड़ेगा। थोड़ा इसको पक्का करना पड़ेगा 1-2 लेक्चर में। Okay, because most of the entrance examination questions and HSC questions are asked on relative motion. So I will be generally taking 2 lectures on relative motion. One will be explaining the concept and other dedicated lecture will be based on numericals. So VB bar minus VA bar. चलो यार, VB bar कितना है? 5. ये कितना है? 2. ये कितना रहेगा? 3 meter per second. What does this mean? This means that velocity of B
विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को आपने दिमाग में क्या कर दिया मेरा बच्चा, रोक दिया। ए को आपने रोक दिया, कहा भाई आप रुक जाओ, अज्यूम्ड, दिस इज अज्यूम्ड, एक्चुअली तो चल रहा है, ओके। और बी का वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू ए इज 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसके अकॉर्डिंग, ग्राउंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं, ग्राउंड वाले के अकॉर्डिंग तो ये 5 से बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये 3 से आगे जा रहा है, बिकॉज ये एक्चुअली क्या हुआ, ये 5 से आगे गया, ये 2 से आगे गया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 3 मीटर पर सेकेंड। देखो ना, ये 5 से भाग रहा है, ये 2 से भाग रहा है, तो एक्चुअली 3 का डिफरेंस आएगा। सो इसको क्या लगेगा, इस ड्राइवर को क्या लगेगा कि बी इज गोइंग आगे विद 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, दिस इज योर मेथड नंबर 1। व्हाट इज मेथड नंबर 2 टेलिंग यू? मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है? मेथड नंबर 2 आपसे कह रहा है कि ये ए है, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू A. Who is looking at who? A is looking with respect to जो रहता है वो देख रहा है ना, A is looking at B. तो who is observed to be at rest? This is assumed to be at rest. तो A को हमको रोकना है, कैसे भी करके A को रोकना है, बट A का स्पीड कितना है, 2, इसको तो रोकना पड़ेगा, तो कैन आई सप्लाई -2। और जो ऑपरेशन आपने A के साथ किया वही ऑपरेशन आपको बी के साथ करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये 5 तो है, आपने इधर 2 दिया तो इधर भी आपको 2 देना है, इधर 5 नहीं देना है, दोनों को रोक नहीं देना है, हाँ। इधर 2 का उल्टा करके इसको दिया, बिकॉज दिस बिकम्स व्हाट, रेस्ट। तो जो ऑपरेशन आपने इधर किया वही ऑपरेशन आपको इधर करना है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट आंसर बेटा, 3 मीटर पर सेकंड। सो कैन आई से बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 3 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड। व्हाट इज द रूल, इसका वेलोसिटी उल्टा करो और इसको दे दो, इसका वेलोसिटी उल्टा करो और इसको दे दो। अगर ये देखने वाला है तो इसका वेलोसिटी उल्टा करो, इसको दे दो, ओके। थोड़े और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स व्हिच वी विल सी, सो दैट यू कैन गेट मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल स्टफ। सपोज a man is moving, ऐसे चल रहा है with 2 meter per second in the positive x direction, yes or no? And there is a bird which is flying with 3 meter per second and 4 meter per second, yes or no sir? ये bird है which is flying somewhere here, तो एक्चुअली ये क्या रहेगा, इसका रिजल्टेंट एक्चुअली हमको ऐसे थोड़ी दिखेगा ऊपर और नीचे, हमको क्या लगेगा, हमको रिजल्टेंट लगेगा। हाउ मच विल बी द रिजल्टेंट, आपको पता है कि दिस रिजल्टेंट विल बी 5, ये सबको पता है ना। एंड दिस एंगल विल कम एज 53 डिग्री, वो तो बाद में हम लोग सीख लेंगे। तो बर्ड एक्चुअली ऐसे उड़ रहा है, बट हमने इसके कंपोनेंट बना दिए। यार कंपोनेंट निकालने आता है क्या, कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा, 5 cos 53, okay, and this will be 5 sin 53, yes or no sir? अच्छा, cos 53 sin 53 निकालने आपको शायद नहीं आता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इधर ध्यान दो, ओके। तो आहिस्ता आहिस्ता इन एवरी लेक्चर आई विल बी टीचिंग यू सम ज्योमेट्री ऑल्सो, सम बेसिक मैथमेटिक्स ऑल्सो, एज वेल एज हम लोग फिजिक्स साथ साथ कर लेंगे। ये तो आपको पता ही रहेगा 3 4 5 ट्राइंगल, यस और नो, 3 4 5, या रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज फाइन, बराबर है क्या, ये तो पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम से, दिस इज 90। ऑलवेज रिमेंबर साइड ऑपोजिट टू 3 इज 37, ओके। साइड ऑपोजिट, ये याद ही रखना है, ट्राइंगल बहुत सारे, ओके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन एचएससी इट इज आस्क्ड। साइड ऑपोजिट टू 3 is 37, 3 7 3, and side opposite to 4 is 53. Side opposite to 3 is 37, side opposite to 4 is 53. Can anyone tell me what is sin 37?
3/5 cos 37 4/5 sin 53 कितना 4/5 cos 53 3/5 tan 37 भाई tan 37 कितना होता है 3/4 tan 53 4/3 तो ये सब चीजें आपको शायद मैथमेटिक्स टीचर ने पढ़ाई ही रहेगी जस्ट ओके आई एम डूइंग इट एंड ऑलवेज रिमेंबर मैथ्स इज वेरी मच नेसेसरी। आप ऐसे मैथ्स ड्रॉप करके नहीं काम चला सकते हो, ठीक है ना। ठीक है चलो इधर आ जाओ, ये चीज है। सो कैन आई से एक्चुअली द बर्ड, ये तो पता है ना, ये निकाल लिया 5 cos 53 तो ये हो जाएगा 3 ओके। क्या मैं लिख सकता हूँ इट इज 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, यहाँ पर इट बिकम्स 2 डायमेंशन ना, तो आपको आई और जी लेना पड़ेगा। पीछे वाले एग्जांपल्स में वी वर ओनली डीलिंग विद आई और जे और के, बराबर एक ही डायरेक्शन था, तो प्लस माइनस लेते तो कोई टेंशन नहीं था। और यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, दिस विल बिकम व्हाट सर 4 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो हमने इस फाइनल वेक्टर फाई को तोड़ दिया ना 3 और 4 में। कितना एंगल बनाना है 53। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। In the x direction it is 3 and in the y direction it is 4 and this is the velocity of the man, that is 2i cap, बराबर है क्या? अच्छा सर, वेरी गुड। अच्छा इधर ध्यान देना। Can I, if I tell you what is the velocity of the bird with respect to man, इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। इसका नाम क्या है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड with respect to man. Who is looking at who? Who is looking at who? Velocity of bird with respect to man means man is looking at the bird and हमने आपको क्या बताया था, जो देखने वाला होता है that is assumed to be at rest। तो इसको और आगे बढ़ते हैं, means man should be assumed to be rest। मतलब मैन को कैसे भी करके रोकना है। अच्छा सबसे पहला मेथड नंबर 1 क्या कह रहा है? नॉर्मल फॉर्मूला मेथड, वी एम बार विल बिकम वी बी बार माइनस वी एम बार। तो व्हाट इज वी बी बार? वेलोसिटी ऑफ द बर्ड क्या रहेगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। भाई ये एक्चुअली फाइव था ना, इसको तोड़ दिया ना x और y में, तो i और j बन गया ना। माइनस वी एम बार कितना रहेगा? 2i कैप। सो दिस विल बिकम 3i कैप माइनस 2i कैप, क्या रहेगा? i कैप प्लस 4j कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन बेटा। मतलब मैन के अकॉर्डिंग बर्ड ऐसे उड़ेगा, बिकॉज मैन खुद चल रहा है ना। I will draw the diagram. What does this mean? This means that अगर आपने ये इंसान को रेस्ट पर पकड़ लिया, yes or no? So this bird which is there, okay, इसके अकॉर्डिंग, ग्राउंड के अकॉर्डिंग नहीं, ग्राउंड के अकॉर्डिंग तो ये ऐसे ही उड़ रहा है, ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये ऐसे ही चल रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग ये जो बर्ड है वो इधर जाएगा विद आई कैप और इधर जाएगा विद हाउ मच स्पीड बेटा? 4j कैप। सो दिस रिजल्टेंट, आपको पता है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पता है क्या? वेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या रहेगा? r। तो r का वैल्यू कितना रहेगा? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अरे ये और ये कितना हो गया? 1 प्लस 5 16 17 रूट 17 मीटर पर सेकेंड से ऐसे उड़ेगा। कैन आई कॉल दिस एंगल एज अल्फा? And can anyone tell me what is tan alpha? Tan alpha will become opposite upon adjacent, will become 4/1. So alpha will become tan inverse of 4. तो ये इंफॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग है? ये इंसान के अकॉर्डिंग है।
ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये जैसे उड़ रहा था वैसे ही उड़ेगा, बट इसके अकॉर्डिंग क्योंकि ये चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका मोशन बदल जाएगा. It will become a 2D motion only, but direction बदल जाएगा, resultant value बदल जाएगा. You can see everyone has changed with respect to the man which was actually moving. Yes or no, sir? तो ये मिला इसके according. Okay, he is the observer, and this is what velocity of the, what is this? This is velocity of the bird with respect to man. Are you all getting it? चलो मेथड नंबर 2 क्या बोलता है? मेथड नंबर 2 बोलता है जो देखने वाला है उसको उल्टा करो और इसको दे दो. जो देखने वाला है, we want velocity of the bird with respect to man. तो who is looking at who? यार बोलो, man is looking at the bird. तो जो देखने वाला है उसको रोक दो मतलब इसको, इस velocity को उल्टा करो, इसको दे दो. तो कह रहा है इसे bird तो ऐसे ही था. bird कैसे था बेटा? 3 ऐसे था, और ये 4j क्या है? मैंने क्या किया, मैंने क्या करना है, मैंने इसका स्पीड को उल्टा करके इसको दे देना है. इसका स्पीड को उल्टा कर दिया मतलब इसको तो रोक दिया, इसको उल्टा करके इसको दे दो मतलब ये ऐसे बना दो ना. यस और नो? 2 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड को उल्टा करना है, ऐसे ही सेम नहीं देना है. स्पीड को उल्टा करके इसको दे दो. सो दिस विल बिकम व्हाट सर? दिस विल बी 4. द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड. 3 - 2 इज व्हाट? 1 है क्या? वही चीज तो आई देखो. अरे यस और नो सर? So this will be the result. This is a very nice method. What is the rule? जो देखने वाला है, हाँ, उसकी स्पीड को उल्टा करो और सेकंड वाले को दे दो. Getting it? What's happening? Okay. चलो और थोड़ा पढ़ते हैं. If I ask you, बेटा सीधा सेकेंड मेथड अप्लाई करूंगा या चलो फर्स्ट मेथड ही कर लेते हैं. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड? कौन देख रहा है? बर्ड इज द ऑब्जर्वर, मैन इज इन मोशन. द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड विल बिकम vm minus vb. Velocity of the man with respect to bird. bird देख रहा है इंसान को, बट बर्ड भी चल रहा है, मैन भी चल रहा है. ठीक है, will become 2i cap minus 3i cap plus 4j cap. इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? minus i cap minus 4j cap. This is the velocity of the man with respect to bird. This is method 1. method 2 क्या बोलता है? Then I'll draw the diagram together कि बर्ड को कैसे लग रहा है. क्या करना है? जो देखने वाला ये है, इसकी वेलोसिटी उल्टी करो और इसको दे दो. बर्ड है, इसको आपने क्या कर दिया? रोक दिया. बराबर क्या? दिमाग में आपने रोक दिया बर्ड को. इसका पूरा स्पीड उल्टा करा और इसको दे दिया. अच्छा सुनो, ये मैन था, इसके पास खुद का कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड. इसको उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा 3 इधर. अच्छा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, यस और नो, और इसको देना पड़ेगा. तो बिकम 4 डाउन. ये तो उसका खुद का है ना, उसको चेंज मत करना भाई. इसको उल्टा करो, इसको दे दो, इसको उल्टा करो, इसको दे दो. यस और नो? सो हाउ विल बी द रिजल्टेंट कमिंग? यस सर, टेल मी प्लीज. ये क्या हो जाएगा? ऐसे होता है. ये मैन है और ये बर्ड है, ये रेस्ट पर है. इसको ये 4 तो चेंज ही नहीं होगा ना. ओके, ये 4 चेंज नहीं होगा. दिस 4 का 4 विल रिमेन 4. एंड ये 2 और 3 है तो ये रहेगा 1. यस और नो? And this is 1 direction in the negative I direction, and this is 4 in the negative J direction. So what is the velocity of the man with respect to bird? It will become minus I cap minus 4j cap. मतलब बर्ड को क्या लगा कि ये इंसान
ऐसे जा रहा है। यस और नो सर? बर्ड को जो रेस्ट पर है उसको लगा कि दिस पर्सन इज गोइंग दिस वे, एंड व्हाट विल बी द रिजल्टिंग, ये तो निकाल सकते हैं ना, रूट 17 एंड अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ 4। तो इस बर्ड को लग रहा है ये ऐसे जा रहा है, देखो वही तो है, माइनस आई कैप माइनस 4j कैप। ओके, दिस इज द थिंग। अब थोड़े और एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, और क्लैरिटी आ जाए। सपोज 2 cars A एंड B, कार वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर रेन एंड मैन का एग्जांपल लेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। दिस इज कमिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज कमिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B? हु इज द ऑब्जर्वर? B। किसको देखना है? A को। हु इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट? B। विद रिस्पेक्ट टू B ना, ऑब्जर्वर B है, तो जो देख रहा है उसको रोकना पड़ेगा ना दिमाग में, जो देख रहा है उसको रोकना पड़ेगा ना दिमाग में, जो देख रहा है उसको रोकना पड़ेगा ना दिमाग में, सो इसको रोकना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इज द जनरल कन्वेंशनल मेथड? VA बार माइनस VB बार। क्या हो जाएगा? VA बार इज 2i कैप माइनस 3i कैप नहीं है, दिस इज माइनस 3i कैप। यस और नो सर? सो इट बिकम व्हाट? 5i कैप। मतलब क्या? मतलब क्या सर? B को हमने रेस्ट पर पकड़ लिया दिमाग में, उसने जब A को देखा तो इसको क्या लगा? इसको ऐसे नहीं लगा कि ये 2 से आगे आ रहा है, इसको ऐसे लगा कि ये 5 से ऐसे आ रहा है, 5i का। यस और नो? दूसरा तरीका क्या था? जो B है उसके स्पीड को उल्टा करो और इसको दे दो, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो 3 ऐसे आ जाएगा, इसको दे देंगे 3 + 2 5 आ गया। Can anyone tell me what is the velocity of B with respect to A? Yes or no? तो क्या करना है? VB माइनस लिया, VB कितना है? माइनस 3i कैप माइनस ऑफ 2i कैप, it become minus 5i कैप। तो who is looking at who? Yes sir? B तो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, किसको? A को। A को आपने रोक लिया, उसको क्या लग रहा है? ये 5 से ऐसे आ रहा है, तो A के अकॉर्डिंग B नजदीक आ रहा है। व्हाट इज द रूल? जो देखने वाला है A देखने वाला है, इसके स्पीड को उल्टा करो और इसको दे दो, तो इसको उल्टा किया 2, इसको दे दिया 5 हो गया। Now we're going to study something called as Rain-Man problems. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। Rain-Man problems I'll be doing in JEE and NEET, और यहां पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। क्या हो रहा है? A man is walking with the speed of 1 meter per second. This is the velocity of the man with respect to ground. बराबर है क्या? रेन, बारिश ऐसे गिर रही है। Can I say velocity of the rain with respect to ground is what? 3 meter per second suppose. बारिश ऐसे वर्टिकली गिर रही है। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इन विच डायरेक्शन शुड man be holding the umbrella to not get wet? Means I need to find velocity of the rain
विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के अकॉर्डिंग ये बारिश कैसे आ रहा है, अर्थ के अकॉर्डिंग 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप बैल्कनी में खड़े हैं, ओके, यू आर एंजॉइंग द रेन, तो अगर आप बैल्कनी में यू आर स्टैंडिंग एंड जस्ट लुकिंग एट द रेन, यू विल फील दैट इट इज कमिंग डाउन 3 मीटर पर सेकेंड। बट ये पर्सन तो चल रहा है ना, सपोज आप बाइक पर हो, आप कार में हो, तो आपको स्पीड ऑफ द रेन ऐसे नहीं दिखेगा, कुछ और डायरेक्शन में दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ द रेन विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड वर्टिकली व्हेन यू आर मूविंग, इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन सम अदर डायरेक्शन। सो यहां पर वही चीज है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस मैन के अकॉर्डिंग ये बारिश कैसे गिर रहा है, और जैसे वो गिरेगा उसके उल्टे डायरेक्शन में ही नीड्स टू होल्ड द अम्ब्रेला। जिस डायरेक्शन में ये बारिश इसके अकॉर्डिंग गिरेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही नीड्स टू होल्ड द अम्ब्रेला। हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। कैन आई से दिस वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man. Who is the observer? Man. He is assumed to be what? At rest. अच्छा, velocity of the rain क्या है? Velocity of the rain is 3j cap minus 3j cap. Velocity of the man क्या है? माइनस तो माइनस है, 1i cap. Yes or no? This is method number 1. याद है ना method number 1? What is method number 2 telling you? Method number 2 tells you कि जो देखने वाला है उसके स्पीड को उल्टा करो और इसको दे दो। तो इसका ऑलरेडी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड तो था ही, इस स्पीड को उल्टा करके इसको दे दिया, तो इसको दे दिया तो ऐसे दे दिया ना बेटा। We need to put tail and tail together, then only I can draw the resultant by parallelogram law. अगर आप हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, यस और नो? आप ट्राइंगल से भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट यहां पर मैं पैरेललोग्राम लॉ से कर रहा हूं। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। आपको पता ही है हु गिव्स यू द रिजल्टेंट, द डायगोनल गिव्स यू द रिजल्टेंट, एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? द रिजल्टेंट विल बिकम, यस सर, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बिकम रूट कितना, 9 and 1 10, रूट 10, यस और नो? And what will be this alpha, this alpha, this alpha? So tan alpha will become 1 by 3. So alpha will be tan inverse of 1 by 3. Yes sir. ये डायरेक्शन में, what is this R? This is the velocity of the man, velocity of the rain with respect to man. मतलब बारिश इस इंसान को ऐसे आते हुए दिखाई देगा। कैसे आते हुए दिखाई देगा? ऐसे आते हुए दिखाई देगा। Yes or no? So he needs to hold the umbrella in this direction. बोलो। अच्छा, अगर ये एंगल अल्फा है तो दिस एंगल शुड आल्सो बी अल्फा ना बेटा। मतलब if I replicate this over here, this guy needs to hold the umbrella in this direction. कितना एंगल बनाना चाहिए वर्टिकल के साथ? अल्फा। ऐसे रखना है, अगर वो ऐसे रखेगा तो भीग जाएगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी मूविंग। सो इसके मुताबिक रेन ऐसे नहीं गिरेगा, ऐसे कुछ गिरेगा। So he needs to hold the umbrella in this direction with an angle alpha with respect to vertical so that he doesn't get wet.